These are the latest visuals, viewers, we're getting in. This car, this is the car, that is the same car, that red Lamborghini that crashed, that rammed into the two workers, and my colleague Sahil, in fact, is getting us those visuals. This is the latest visual. We just ran that footage. It's the live footage, live coverage, Republic TV reporting from the spot and from the police station, of course. And we'll try and connect with our reporter there, where the car is right now, showing us the car. आज शाम 5:30 बजे के आसपास नोएडा सेक्टर 94 के चरखा गोल चक्कर के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान कार चालक का संतुलन खोया जाता है और फुटपाथ पे कुछ मजदूर बैठे हुए थे, क्योंकि साथ में कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो वहीं पे गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ती है। जो मजदूर वहाँ पे बैठे हुए थे उनको ज़ोरदार इस गाड़ी के ज़रिए हिट किया जाता है और आखिर में जाके गाड़ी जो है पेड़ से जा टकराई जाती है। आप ये तस्वीर आप देखिए, साइड के जो शीशा है, साइड मिरर है, पूरी तरह डैमेज हो चुका है। रेड कलर की ये लैम्बोर्गिनी कार है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये गाड़ी का जो चालक है दीपक, वो ब्रोकर है, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ये जो गाड़ी की रजिस्टर है वो पौंडीचेरी का नंबर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो जो इसमें मजदूर घायल हुए हैं वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत पहले से बेहतर बनी हुई है। लेकिन आप ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी कार है, काफ़ी हाई स्पीड कार है और एक रोड पे तेज़ रफ्तार पे कार चलाना, कई सवाल जो है कार चालक पे खड़े होते कि आखिरकार क्या मकसद था कि इतनी स्पीड में कार चालक गाड़ी को उस रोड पे भगा रहा था और अचानक से संतुलन खोता है और ब्रेक मारते हुए जो फुटपाथ पे गाड़ी जो है अचानक से चढ़ जाती है। गाड़ी का नंबर PY05C7000 है। कार चालक अरेस्ट हो चुका है और गाड़ी का जो साइड का जो हिस्सा है वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जो मजदूर घायल हुए थे उनकी हालत पहले से बेहतर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। There you have my colleague Sahil getting you the latest details and showing us those visuals of the Lamborghini that was the same luxury sports car that was rammed into by this brat, by this man who casually asked, "Koi mar gaya kya? Has someone died?" He has no humanity. There is a lot of luxury, a lot of riches you can see is coming from, and he's also coming from that privilege. And he very casually asked that, "Has anyone died?" That is the arrogance displayed by this man who had hit two pedestrians, two workers who were sitting on the footpath. And he has been arrested. He has been arrested by the Gautam Budh police, Gautam Budh Nagar police, the Noida police. This happened near the M3M project in sector 94. And the pedestrians, thankfully, what we understand as per Akhil's information is that they are safe right now. They are out of danger. But you see that this accused, we'll try and get more details about this accused as to who he is. And he is, of course, facing investigation now. He has been detained, but we are waiting for more updates about this. But you see that there is zero humanity being displayed by this man. There is the local who thankfully shot him and exposed him. They shot his video and asked him that, are you into performing stunts? Because you can see what you did. And he casually asked, did anyone die? And what does he expect? And even if somebody is dead, you think somebody is dead, he could have gotten out of the car and rushed out to help them. And that you can see the extent of the damage. I think Akhil is still with me. Akhil, we can see the extent of the damage, but of course, it remains to be known as to what really happened. He lost control of his car. In what condition was he in? And who is this man? Where is this car from? And you know, we need more details, and because we want to expose these people, because this is rampant. These accidents, so-called accidents, these cases of horrific hit and run are so rampant in the country, and there is no example. One has to lead by example. The agencies have to work strictly so that nobody dares to do this again. Akhil. All right, we'll just try reconnect with Akhil, but my colleague Sahil is getting you the visuals from inside of the car as well. This man has been arrested who was behind the wheel. This is near Amity University, viewers, sector 126, outside M3M project, where, of course, construction was underway and there were workers, there were laborers who were sitting by the footpath. And he crashed his car, rammed into those people.
police arrived immediately and admitted the injured to a private hospital and detained the driver. And the vehicle also seized for further investigation, and that's what we are seeing from the police station. These visuals coming in, this Lamborghini, this luxury sports car, And I'm told that my colleague Sahil is joining us live on the broadcast from police station. Sahil, tell us more. हमें और बताइए इस शख्स के बारे में कोई भी जानकारी आपके सामने आई है? किस अवस्था में था, किस स्थिति में था, और ये शख्स कौन है जो गाड़ी चला रहा था? देखिए, ये शाम 5:30 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। लैम्बोर्गिनी कार चालक का नाम जो है दीपक है। दीपक जो है गाड़ियों का सेल परचेज का काम करता है। आज शाम को वो चरखा चौराया नोएडा सेक्टर 94 के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान उसकी गाड़ी का संतुलन खोता है और फुटपाथ पर जो मजदूर बैठे हैं उनको जोरदार हिट कर देता है। दोनों लेबरों को जो है नज़दीकी अस्पताल में एडमिट करा दिया है। उनकी जो सिचुएशन है पहले से बेटर बताई जा रही है और जो पुलिस के मुताबिक ये बताया, जो गाड़ी का जो नंबर रजिस्टर्ड है वो पौंडीचेरी की गाड़ी है और जो साथी जो गाड़ी है वो मृदुल तिवारी नाम के शख्स के नाम रजिस्टर्ड बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिस दीपक को कार चालक को गिरफ्तार किया है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, उसका मेडिकल जांच की जा रही है क्योंकि इससे पता चल पाएगा आखिर वो नशे में था या फिर वो नॉन अल्कोहलिक था, क्या वजह थी जो गाड़ी पे जो हिट हुआ, अचानक से जो इंसिडेंट होता है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शख्स की उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जा रहा है। पुलिस का कहना है मामला जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल है क्योंकि लैम्बोर्गिनी कार की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा थी और इसी दौरान ये जो इंसिडेंट था वो देखने को मिलता है। और जिस जगह पे ये लेबर क्लास बैठे हुए थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, 2 से ज़्यादा भी लेबर थे लेकिन 2 लेबर ही इसकी चपेट में आए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही, तफ्तीश के बाद ही तमाम जो जानकारी है वो मीडिया से साझा की जाएगी। जी as you can see, viewers, Sahil is telling us that a man is called Deepak who was behind the wheel. He has been taken for medical investigation to the hospital so as to check that was he inebriated and what state was he in. And this was a case, this was a car that is worth crores and crores, at least 3 to 4 crore rupees is the price of a Lamborghini. And that man rammed into 2 people. आपको कुछ जानकारी मिल रही है साहिल उन 2 लोगों के बारे में जो लेबरर्स हैं? क्या वो इस अवस्था में थे पुलिस से बात करने के? अभी वो किस स्थिति में है? क्या वो आउट ऑफ डेंजर है? देखिए, पहले दोनों की पहचान हो चुकी है। दोनों का नाम रविदास और रंबू बताया जा रहा है। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके पेट और टांग पे जो है काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि अभी डॉक्टर्स ने मना किया है कि अभी फिलहाल वो बयान दर्ज कराने की हालत में नहीं है, लेकिन जैसे उनकी रिकवरी होगी बयान दर्ज कराने की वो हालत में होंगे। उसके बाद पुलिस जो उनका दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो नोएडा पुलिस द्वारा की जाएगी। क्योंकि अभी हमारी पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी तो उनका कहना था कि कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी, जो भी लीगल एक्शन होगा वो इस केस में लिया जाएगा। और यही वजह कि कार चालक को मौके पे ही लोगों ने पकड़ लिया, दीपक को, और दीपक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि दीपक की जो प्रोफाइल है वो भी खंगाली जा रही है क्योंकि दीपक पुरानी जो है गाड़ियों को सेल परचेज का काम करता है और ये गाड़ी भी कहीं ना कहीं सेल परचेज के मकसद से ही गाड़ी को ड्राइव करके लेके जा रहा था। लेकिन इतनी स्पीड में क्यों था दीपक, ये फिलहाल जांच का विषय है क्योंकि दीपक से पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है लेकिन मेडिकल से और भी तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेके सीज कर लिया है और लीगल एक्शन लिया जा रहा है। जी कुछ पूछताछ की गई है दीपक से? पुलिस ने कोई तफ्तीश में कुछ पूछताछ की है? क्या उसका बयान लिया गया है अभी तक? देखिए, दीपक जो है पुलिस की कस्टडी में है। दीपक से पूछताछ की जा रही है। दीपक को पुलिस जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके गई है क्योंकि उसका मेडिकल होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने ड्रिंक करी हुई थी या फिर विदाउट ड्रिंक था। वो मेडिकल के बाद तमाम बातें साफ होंगी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है खुद इस पूरे मामले को जो है ऑपरेट कर रहे हैं, उससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी आखिर वो इतनी स्पीड में कार क्यों चला रहा था, कार को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा था। क्योंकि लैम्बोर्गिनी कार है तो जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ तस्वीरों देखकर यही लगता है कि जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए गाड़ी का संतुलन खोआ और अचानक से फुटपाथ पर बैठे मजदूरों पे जो थी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है जांच की जाती है, जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल दीपक पुलिस की कस्टडी में जो कि हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। जी Right, so as my colleague Sahil is telling us, viewers, that this man was dealing with car sale and purchase of cars, and this was not registered in his name but some other individual's name, and he's undergoing medical
medical investigation so as to ascertain his condition. And this man was casually, what's the worst part is that he rams into two people and then he casually asks the person who was shooting his video that has someone died. A very arrogant way of asking, and insensitivity at full display. He gets out after this so-called chat was going on, and then this is the man whose name is Deepak, as Sahil was telling us, he's reporting live from the police station and showing us this car. You can see the extent of damage clearly shows you that the kind of the horrific, the magnitude with which it would have hit those people. Listen into the reaction and the entire video viewers. गाड़ी इसने टच कर दी थी, पीछे शिफ्ट आई थी कोई, उनके मतलब कौन था, मैं वहाँ से निकल गया था। तो ये कितने बजे का इंसिडेंट था? कितनी स्पीड में थी गाड़ी? कुछ मतलब होगी 100-150 स्पीड के बीच में होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, इतना स्पीड में था? हाँ जी। तो आपकी गाड़ी वहाँ पे जगह ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी। तो क्या हुआ था वहाँ पे? जो लेबर थी, मजदूर थे, वो किस साइड पे बैठे? इस बंदे पे सब चढ़ रहे थे, वहाँ के गार्ड जो थे इसको गाली गलौज कर रहे थे, तो मैं दूर से देख के चला गया था, मेरा कोई वो नहीं था। गाड़ी में कोई और भी लोग थे? नहीं, अकेला था शायद, इस साइड में बैग रखे थे। तो आपने मौके पे थे, कोई बातचीत की हो या कुछ छोड़ाया हो? कुछ नहीं, मैं पीछे कोई शिफ्ट आई थी, वो उतरे थे सारे, गाड़ी का भगे थे, मैं निकल गया था, दूर से देखते हुए चला गया था। तो गाड़ी जिगजैग थी या काफ़ी स्पीड में थी? कुछ गाड़ी सीधी थी, मतलब मुझे नहीं पता उसका फ़ोन पे ध्यान था, किस पे था वो पता नहीं, पर गाड़ी एकदम लगी, फिर मैं सीधा निकल गया था कि मुझे क्या मतलब किसी गाड़ी है। तो आपने देखा कितने लोग उसमें इंजर्ड हुए थे? कितने लोग वहाँ फुटपाथ पे बैठे थे जो मजदूर वर्कर्स? मतलब कहने वाली बात है, इंजर्ड हुए नहीं, पर 2 बंदे शायद लगी थी चोट उन्हें। कितने बजे का इंसिडेंट होगा? दोपहर का है, 4-5 बजे का। देखिए, आई विटनेस है जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, ये मौके पे मौजूद थे, गाड़ी स्पीड में थी। इन्होंने कहा कि 100-150 की स्पीड थी। जो वर्कर्स थे वो फुटपाथ पे बैठे हुए थे और अचानक से गाड़ी जो है फुटपाथ पे चढ़ती है, दोनों वर्कर्स जो है इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। जी। Even the eyewitnesses are as casual as the driver he was speaking. I mean, he is saying that there is nothing, there was not a great amount of, the speed was not so much. And then why will 2 people get so grievously injured is the question, and that what we are asking, of course, Sahil. ये बात है कि हम किस तरह से सीरियसली लेते हैं ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक नॉर्म्स को। तमाम तरह के हमने ऐसे क्रैश केसेस देखे हैं, हमने पूरे अलग अलग स्टेट से देखे हैं किस तरह से लोग जो लग्जरी कार्स में होते हैं और वो किस तरह से बहुत ही केयरलेसली, रेकलेसली ड्राइव करते हुए लोगों की जानें चली जाती हैं। ये केस हम ऑलमोस्ट हर महीने ऐसे केस देखते हैं, और ऐसे केस में क्या अभी जो केस दर्ज हुआ, FIR दर्ज हो गई है, डिटेन कर रखा है इस शख्स को जो ड्राइवर था, कोई इस पे क्या केस क्या कोई चार्जेस प्रेस किए गए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ, देखिए, यही कार चालक की लापरवाही का तो जो नतीजा है वो उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इस हादसे के शिकार होते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट जो है हम हर बारी जो है वो काफ़ी देखते हैं कि कार चालक स्पीड में होता है, संतुलन खोता है, और जो रोड पर चल रहे होते हैं उन कार चालक जो है वो टक्कर मार दे। तो हो सकता है ये भी ऐसा ही हुआ कि कार जो थी काफ़ी स्पीड में थी, क्या हुआ था, मोबाइल में लगा हुआ था शख्स या कोई और वजह थी, वो पूछताछ में साफ हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR रजिस्टर्ड नहीं की है, क्योंकि पहले मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो भी धाराएं होंगी उन धाराओं के तहत ही जो है पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करेगी। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारी DCP रैंक से अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और कोई भी कोताही जो है इस पूरे मामले में नहीं बरती जाएगी, और यही वजह है कि दीपक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद पुलिस जो भी लीगल एक्शन है, जिन धाराओं में केस रजिस्टर करना है उन धाराओं में होगा, क्योंकि जो 2 वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे फुटपाथ पे जो इंजर्ड हुए हैं, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी स्टेटमेंट पे ही पुलिस की आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी, लेकिन जैसे ही वो रिकवरी करेंगे उसके हिसाब से पुलिस दोनों वर्कर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और आगे की जो लीगल एक्शन है वो पुलिस द्वारा लिया जाएगा। Absolutely, you have to understand that it's a sports car, it's a luxury sports car, and it's a high performance sports car, and the speed will be always and the speed and the intensity of course will be way ahead of other cars. That is something that the impact clearly defines. You can see what has happened. Thank you so much, Sahil, for joining us. We'll try and keep a close eye because Republic TV showing you viewers the
aftermath as well, what has happened after this man was arrested, and the car that has been seized inside and outside, all the visuals coming in first and exclusive on Republic TV. We'll try and speak to more and more people, get all the details, because these arrogant, reckless, shameless drivers, they need to be exposed and they need to be acted against, because this is not the first time that we are bringing to you such a hit and run case. And this is a case that is coming in from the National Capital Region of Noida. Lamborghini hitting two pedestrians. The man has been detained who was behind the wheels. We'll get you more updates, but right now we're simply a very, very short break. Don't go anywhere.